اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الہادی عشرہ انہ یجوز اتباع مجرورہ علی المحل عند من لا یشترط المحرز ویحتمل ان یکون منہ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ولا یجوز ہوا حسن الوجہ والبدن بجر الوجہ و نصب البدن خلافا للفراء۔ حسن الوجہ پڑھنا ہے، ہوا حسن الوجہ والبدن۔ بے شماری کیا چل رہی تھی میرے عزیزو؟ بے شماری اس میں فاعل اور صفت مشبہ کے درمیان جو فرق ہیں ان کے بارے میں چل رہی تھی، اور عرض کیا تھا اپنے بھائیوں کو کہ اس میں فاعل اور صفت مشبہ کے درمیان 11 فرق ہیں۔ اس میں فاعل اور صفت مشبہ کے درمیان 11 فرق ہیں۔ 10واں فرق پہ آ جاتے ہیں تاکہ رابط دے سکوں۔ یہ تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ 10واں فرق یہ تھا کہ اس میں فاعل کے معمول کی تمام توابع اتباع کر سکتے ہیں۔ اس میں فاعل کے معمول کی تمام توابع بدل، عطف بیان، عطف نسق، تاکید، صفت، تمام توابع اس میں فاعل کے معمول کی اتباع کر سکتے ہیں، لیکن صفت مشبہ کے معمول کی صفت پیروی نہیں کرتی ہے۔ صفت مشبہ کے معمول کی صفت پیروی نہیں کرتی ہے۔ یہ جو 10واں فرق ہے کہ اس میں فاعل کے معمول کی تمام توابع پیروی کرتی ہیں، کرنا جائز ہے، اور صفت مشبہ کے معمول کی جو ہے پیروی صفت نہیں کرتی ہے۔ صفت مشبہ کے معمول کی پیروی اتباع صفت نہیں کرتی ہے۔ یہ جو 10واں فرق ہے اس کو زجاج اور متأخر المغاربہ نے کہا، لیکن ایک حدیث کے ذریعے سے جو صفت دجال کے بارے میں ہے اس سے متأخر المغاربہ کی بات پر اشکال وارد ہے۔ وہ صفت دجال کیا ہے؟ اعورو عینہ الیمنا، اعورو عینہ الیمنا، تو اس میں عینہ معمول ہے، اعورو جو صفت مشبہ ہے اس کا عینہ معمول ہے، اور الیمنا اس کی صفت ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ تو مغاربہ اور زجاج کی بات کو رد کر رہی ہے۔ زجاج اور مغاربہ کہتے تھے صفت مشبہ کے معمول کی صفت کیا ہے جان؟ پیروی نہیں کرتی ہے، جبکہ یہاں عینہ معمول ہے اور الیمنا اس کی صفت ہے۔ صفت مشبہ کے معمول کی صفت یہاں پیروی کر رہی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن اس کا جواب دیا گیا ہے کہ الیمنا عینہ کی صفت نہیں ہے، بلکہ یمنا یا خبر ہے مبتدا معذوف کے لیے، یعنی ہے یا یمنا یا جناب علی یہ یمنا مفعول ہے فعل معذوف کے لیے۔ آنی کا مثلا کیا ہے غجان؟ مفعول ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ 10واں فرق تھا۔ 10واں فرق آج دوبارہ تکرار کیا ہے رابط دینے کے لیے۔ صفت مشبہ اور اس میں فاعل کے درمیان 11 فرق ہیں، 11 فرق۔ 10 فرق ہم نے پڑھ لیے تھے آقا جان، آج آپ کی خدمت میں
11वां फर्क जो है वो पेश कर रहा हूं। सिफत मुशब्बा और इसमें फाइल के दरमियान 11वां फर्क जो है वो आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। वो क्या है कि इसमें फाइल के मजरूर की इत्तिबा करना महल पर जायज है। इसमें फाइल के मजरूर के महल की इत्तिबा करना जायज है, अलबत्ता उनकी नजर में जो मोहरिज को शर्त नहीं समझते हैं, जबकि सिफत मुशब्बा के मामूल के महल की पैरवी करना जायज नहीं है। क्या कहा आगा जान, बात क्या मैंने की आपकी खिदमत में और क्या पहुंची जनाब। 11वां फर्क अर्ज कर रहा हूं, सिफत मुशब्बा और इसमें फाइल के दरमियान 11वां फर्क ये है कि इसमें फाइल के मजरूर की महल पर, इसमें फाइल के मजरूर की महल पर इत्तिबा करना जायज है, जबकि सिफत मजरूर के महल की इत्तिबा करना जायज नहीं है। इसमें फाइल के मजरूर की महल पर इत्तिबा करना जायज है, सिफत मुशब्बा के मजरूर के महल की इत्तिबा करना जायज नहीं है। यानी इसमें फाइल के महल की इत्तिबा करना और मजरूर के महल की जायज है, सिफत मुशब्बा के मजरूर के महल की इत्तिबा करना जायज नहीं है। ठीक हो गई बात आगा जान। मिसाल अर्ज करूं आपकी खिदमत में, ये मिसाल इसी की बनती है, वजाइलुल लैली सकनन वशम्स वल कमरा हुस्बानन। यहां जाइलुल लैली सकनन वशम्सा, वशम्सा जो नसब दी है इसने इत्तिबा की है, इसमें फाइल के मजरूर के महल की, इसमें फाइल जो जाइल है, ठीक है, उसका मजरूर जो अल-लैल है इसकी इत्तिबा की है। इसमें फाइल के मजरूर जो अल-लैल है इसके महल की वशम्सा जो है इसने इत्तिबा की है। वशम्सा ने अल-लैल जो है, ठीक है ना, इसके महल की इत्तिबा की है। महल अल-लैल का क्या है, अल-लैल लफ्जन मजरूर है, लेकिन अल-लैल का महल मंसूब है, लिहाजा वशम्सा ने अल-लैल जो महलन मंसूब है उसकी पैरवी की है। ठीक है, अल-लैल महलन मंसूब है, ठीक है या नहीं। अलबत्ता ये इत्तिबा उस सूरत में है जब हम मोहरिद को शर्त करार ना दें कि महल की इत्तिबा करना उस वक्त है जब तालिब महल हो। मोहरिद यानी तालिब महल, आमिल महल, उस महल को तलब करने वाला आमिल मौजूद हो। महल के एराब को, महल के एराब को तलब करने वाला आमिल मौजूद जो है वो ना हो, उस सूरत में है। चूंकि यहां अल-लैल हम कह रहे हैं महलन मंसूब है, महलन मंसूब है, तो इसका इस महल को नसब देने वाला कि लैला का जो महल है, महलन मंसूब को तलब करने वाला आमिल नहीं है। यहां वो आमिल क्या होता है जो नसब देता है, वो जनाब इसमें फाइल है जो तनवीन के साथ हो। मसलन होता जाइलुन अल-लैला, जाइलुन, इसमें फाइल जो तनवीन वाला है ना वो क्या करता है, वो नसब देता है तालिब महल। यानी मसलन उस वक्त होता जब ये क्या होती है, इस पे आगा जान, इसमें फाइल पे तनवीन होती या अलिफ लाम लगी हुई होती। अब चूंकि महल्ली एराब को तलब करने वाला
आमिल नहीं है यहाँ, ठीक है। लेकिन हम महल की इत्तिबा करवा रहे हैं, किस बिना पर? उन लोगों की बिना पर जो मुहरिद को शर्त नहीं समझते हैं कि महल की पैरवी करने के लिए मुहरिद का होना शर्त है। मुहरिद यानी महल के एराब को तलब करने वाला आमिल। जो लोग महल के एराब को तलब करने वाला आमिल की शर्त नहीं समझते हैं तो उनकी नजर में ये ठीक है। लेकिन सिफत मुशब्बा में महल मजरूर की, ठीक है आगे जान, महल की इत्तिबा करना जायज नहीं है। हुवा हसनुल वजहे वल बदना, अल वजहे का महल हम कहें नसब है, लिहाजा बदना पड़ा है कि बदना का अत्फ किया है वाज के महल पर। वाज लफ्जन मजरूर है लेकिन महलन मंसूब है। ये कहें कि वाज के महल पर बदन का अत्फ किया है, ये नहीं कर सकते। सिफत मुशब्बह में ये जायज नहीं है। अजीजो भाइयों दोबारा सुनो, 11वां फर्क सिफत मुशब्बह और इसमें फाइल का ये है कि इसमें फाइल के मजरूर की महल पर इत्तिबा करना जायज है उनकी नजर में जो मुहरिद को शर्त नहीं समझते हैं, ठीक है। जबकि सिफत मुशब्बह के मजरूर की महल पर इत्तिबा करना जायज नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये मिसाल आपको मैंने दे दी है, इसमें फाइल की भी दी, सिफत मुशब्बह की भी दी है। फर्रा नावी जो है वो मुखालिफ हैं। फर्रा नावी ये कहते हैं कि सिफत मुशब्बह के मामूल के मजरूर की, सिफत मुशब्बह के मामूल के मजरूर की महल पर इत्तिबा करना जायज है। फर्रा नावी कहता है सिफत मुशब्बह के मामूल की भी महल पर इत्तिबा करना जायज है। मिसाल क्या दी? होवा कवी और रिजले वाल यदो। कवी ओ सिफत मुशब्बह, और रिजले ये इस कवी का मामूल है और रिजले जो है ये असल में मरफू है, चूंकि फाइल है कविया का, और रिजल फाइल है कविया का, महल्लन मरफू है, महल्लन मरफू है, लफ्जन मजरूर है लेकिन महल्लन। लिहाजा अल यदो की, यदो ने क्या किया जान? पैरवी की है। यदो का अत्फ किया है किस पर? रेजल के महल पर अत्फ किया, चूंकि रेजल का जो महल है वो मरफू है, फाइल है, यदो भी मरफू है। ये किसने कहा है? फर्रा नाहवी ने ये जनाब बताया है। अच्छा, बगदादीयून ये कहते हैं कि इसमें मंसूब की, इसमें मजरूर इत्तिबा कर सकता है, ठीक है या नहीं? बगदादी क्या कहते हैं? मंसूब की इसमें मजरूर जो है वो इत्तिबा कर सकता है। मंसूब की मजरूर, इसमें मजरूर मतलब है मंसूब की पैरवी कर सकता है दोनों बाबू में, इसमें फाइल में भी और सिफत मुशब्बा में भी। बगदादियों ने इजाजत दी है कि मंसूब की इसमें मजरूर पैरवी कर सकता है, इसमें मजरूर ताबे हो किसका? इसमें मंसूब का, दोनों बाबू में, इसमें फाइल में भी और सिफत मुशब्बा में भी जायज है। मिसाल जनाब ये देते हैं, फजल्ला
तो हातुल लहम मा बैना मुनज़िजिन सफीफा शिवाइन औ कदीरिन मुअज्जलिन। ठीक हो गई बात आगे जान। औ कदीरिन मुअज्जलिन, यहाँ तवज्जो फरमाइए। मा बैन मुनज़िजिन सफीफा शवाइन औ कदीरिन मुअज्जलिन। तवज्जो फरमाना, यहाँ मंसूब की पैरवी कर रहा है मजरूर। मजरूर औ कदीरिन जो है ना, औ कदीरिन, ये किसकी पैरवी कर रहा है आगा जान? ज़फ़ीफ़ा की। ज़फ़ीफ़ा की ये पैरवी कर रहा है, ज़फ़ीफ़ा के महल की। कदीर जो मजरूर है, कदीर जो मजरूर है, ये ज़फ़ीफ़ा के महल की पैरवी कर रहा है। चूंकि ज़फ़ीफ़ा का महल मजरूर है, कदीर इसकी पैरवी कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो कदीरिन है इसके बारे में और भी एहतिमाल हैं कि ये कदीरिन क्यों पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, बाद ने ये कहा है कि पीछे असल में है ताबिखे कदीरिन, मुज़ाफ माज़ूफ है, ताबिखे कदीरिन है। एक वजह ये बताइए। फिर कहा जो मुज़ाफ था ताबिख वो हज़फ हो गया है और मुज़ाफ इलैह अपनी जर पर बाकी है। कदीरिन के पीछे मुज़ाफ था, ताबिख कदीरिन, वो ताबिख मुज़ाफ हज़फ हुआ और मुज़ाफ इलैह अपनी जर पर क्या है जान बाकी है। जिस तरह ये आये मजीदा है, वल्लाहु युरीदुल आखिरते बिल खफ्द, यहाँ भी आखिरते जो है इसका मुज़ाफ हज़फ है, मुज़ाफ इलैह बाकी रहा है। असल में वल्लाहु युरीदो बका, बका अल आखिरते, बका मुज़ाफ हज़फ है, मुज़ाफ इलैह बाकी है। ये कर लें हम कि कदीर का मुज़ाफ इलैह बाकी है और मुज़ाफ हज़फ है, या ये कहें कदीर अत्फ है ज़फ़ीफ़ पर, कदीर का अत्फ है ज़फ़ीफ़ पर, लेकिन जर दी गई है जवार पर। जवार जो शिवाइन मजरूर है उस जवार की बिना पर कदीर को जर दी गई है। कभी जो एराब है वो हमसाए का दिया जाता है जवार का, लिहाजा जवार शिवा मजरूर था वो एराब दिया है। वैसे कदीर का जो है ना अत्फ हो रहा है ज़फ़ीफ़ पे, लेकिन एराब हमसाए का दिया है। एक ये कहें या कहें नहीं, कदीर का जो अत्फ है वो अत्फ अलत तवाहुम है, ज़फ़ीफ़ पर है। कदीर का अत्फ ज़फ़ीफ़ पर है, लेकिन है क्या? अत्फ अलत तवाहुम है। तवाहुम है यानी फ़र्द है कि ज़फ़ीफ़ मजरूर है, इजाफत की वजह से फ़र्द करेंगे कि मुनज़िजिन मुज़ाफ हुआ है ज़फ़ीफ़ की तरफ और ज़फ़ीफ़ फ़र्ज़न मजरूर है, कदीर भी मजरूर है। ये अत्फ अलत तवाहुम या अत्फ अलल फ़र्द जो है ये है, जैसा कि ये शायर के शेर में देखो, बद अली अन्नी लस्तो मुदरका मा मज़ा वला साबिकिन शयन इज़ा काना जाइया। अन्नी लस्तो मुदरका मा मज़ा वला साबिकिन शयन इज़ा काना जाइया। लस्तो मुदरका मा मज़ा, ठीक है, वला साबिकिन, यहां तवज्जो करो, साबिकिन का अत्फ मुदरका पे है और मुदरका को फर्ज किया है कि ये मजरूर है, मुदरका को फर्ज किया है कि ये मजरूर है, क्योंकि ये लैसा की खबर है और खबर पर बा ज़ैदा होता है, खबर पर बा ज़ैदा होता है, तो बा को ज़ैदा फर्ज करके यहाँ मुदरक को हमने ये फर्ज किया है, फर्ज किया है, तमाम का मतलब फर्ज है, फर्ज किया है कि मुदरक मजरूर है और साबिक का इस मुदरक पे अत्फ किया है। तो साबिकिन हमने पढ़ा है
अजीजो। ठीक हो गई बात का बहुत ज़्यादा तकरार कर दिया अपने भाइयों की खिदमत में, लेकिन ना फिर आपकी खिदमत में थोड़ा सा अर्ज करके, ठीक है या नहीं, माजरत के साथ दोबारा आगे बढ़ता हूँ। 11वां फ़र्क इसमें फ़ाइल और सिफत मुशब्बा के दरमियान ये है कि इसमें फ़ाइल के मजरूर की महल पर, इसमें फ़ाइल के मजरूर की महल पर इत्तिबा करना जायज़ है, जबकि सिफत मुशब्बा के मजरूर की महल पर इत्तिबा करना जायज़ नहीं है। ये हमने पढ़ा है अपने भाइयों की खिदमत में, तवज्जो फरमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अल्लाह हस्बी अल्लाह। अल हादी अशर, 11वां फ़र्क इसमें फ़ाइल और सिफत मुशब्बा का अन्नहु यजूज़ु इत्तिबाउ मजरूरिही अलल महल इंद मन ला यश्तरितुल मुहरिज़। इसमें फ़ाइल जो है यजूज़ु इत्तिबाउ मजरूरिही अलल महल, इसमें फ़ाइल के मजरूर की महल पर इत्तिबा करना जायज़ है। इंद मन ला यश्तरितुल मुहरिज़, जो मुहरिज़ को शर्त नहीं समझते हैं। इंद मन, उनकी नज़र में, ला यश्तरितुल मुहरिज़, जो मुहरिज़ को शर्त करार नहीं देते हैं। मुझे इसी में शक है कि आपको पता नहीं क्लियर हुआ ये नहीं। मुहरिज़ को शर्त करार जो है ना नहीं देते। मुहरिज़ क्या है? मुहरिज़ वो जो उस महल के एराब को तलब करने वाला आमिल है, उस महली एराब को तलब करने वाले आमिल को मुहरिज़ कहते हैं कि मुहरिज़ होना चाहिए उस आमिल को तलब करने वाला, ठीक है। और जो शर्त नहीं समझते कि जरूरी नहीं है आमिल होना चाहिए उस महल को तलब करने वाला, उनकी नज़र में ये बात हो रही है। वह यहतमिल अन यकून मिन्हु, और एहतमाल है कि अन यकून मिन्हु ये इसी मौरिद में से है, इसी मौरिद में से, यानी क्या, इसमें फ़ाइल के मजरूर के महल की इत्तिबा करना। वजाइलुल लैल सकनन वशम्स वल कमरा हुस्बानन, यहाँ वशम्सा का अत्फ किया है लैल पर, चूंकि लैल का महल मंसूब है। लैले महलन मंसूब है, महलन लफ्ज़न तो मजरूर है ना, महलन मंसूब है, ठीक है। तो शम्स का अत्फ उसके महल पर किया है। वजाइलुल लैल सकन वशम्स वल कमरा हुस्बानन, और बनाया उसी ने रात को सकून व आराम के लिए और सूरज और चांद को हिसाब के लिए। वला यजूज़ो हुआ हसनुल वजह वल बदना बिजर्रिल वजह व नस्बिल बदन खिलाफन लिल फर्रा, और जायज़ नहीं है हुआ हसनुल वजह वल बदना, कहें कि बदना जो है इसका अत्फ किया है वज के, ठीक है ना, महल पर, कि महलन वज मनसूब है, बदन भी मजरूर है ना। सिफत मुशब्बा में ये जायज़ नहीं है। बेजर्रिल वज व नस्बिल बदन, क्यों जायज़ नहीं है, वजह नहीं बताई, लेकिन अर्ज कर रहा है बंदा हकीर फ़कीर सरापा तकसीर, चूंकि सिफत मुशब्बा अमल में ज़ईफ़ है, इसलिए सिफत मुशब्बा के महल की पैरवी करना जायज़ नहीं है। वजह यही है, सिफत मुशब्बा अमल में ज़ईफ़ है। खिलाफन लिल फर्रा, फर्रा नावी के खिलाफ, फर्रा क्या कहता है कि सिफत मुशब्बा के मामूल के महल की पैरवी करना जायज़ है, ठीक है। खिलाफन लिल फर्रा, फर्रा खिलाफ वजादा हुआ कवि और रेजले वाली यदो, यदो क्यों पढ़ा जी, कहीं रेजल के महल पर अत्फ किया है। रेजल महलन मरफू है, चूंकि कवि का फाइल है, वो जो है कवि और रेजल है, पाँव उसके कवि हैं, वाली यदो, और वो हाथ उसका क्या है, वो भी कवि है, बेरफ इल्मातु वाली यदो, ठीक है। व अजाजल बगदादियून इत्तिबाउल मंसूब बेमजरूरन फिल बाबैन, बगदादियों ने इजाजत दी है कि मंसूब की मजरूर पैरवी कर सकता है। इत्तिबाउल मंसूब बेमजरूर, मंसूब की मजरूर पैरवी करे
جائز ہے، بغدادیوں نے اجازت دی ہے منصوب کی مجرور پیروی کرے، جائز ہے۔ فی البابین دونوں بابوں میں اسم فاعل و صفت مشبہ کا قول امر القیس ہے۔ فَذَلَّاتُهَاتُ اللَّحْمِ مَا بَيْنَ مُنْزِجٍ ذَفِيفَ شِوَائٍ صحیح او قدیر معجل، میں شاید پہلے بتاؤں، او قدیرن جو ہے یہ مجرور ہے نا، یہ ذفیفہ منصوب کی پیروی کر رہا ہے، ذفیفہ کی قدیرن، قدیرن جو مجرور ہے یہ منصوب ذفیفہ کی محل کی پیروی کر رہا ہے۔ فَذَلَّاتُهَاتُ اللَّحْمِ مَا بَيْنَ مُنْزِجٍ ذَفِيفَ شِوَائٍ او قدیر معجل، گوشت پکانے والے، گوشت پکانے والے، ما بین منزجن ذفیفہ جو بریانی، ذفیفہ بریانی، شوا کباب جو ہے نا وہ پکا رہے تھے، او قدیر معجل یا گوشت جو ہے دیگ میں، قدیر گوشت دیگ میں پکا رہے تھے، معجل جلدی جلدی۔ القدیر، قدیر کیا ہے؟ المطبوخ فی القدر، قدیر کا معنی کیا ہے؟ المطبوخ فی القدر، یعنی کوئی چیز مطبوخ پکائی جائے قدر دیگ میں، مطبوخ پکانا فی القدر دیگ میں، دیگ میں جو ہے نا چیز پکانا۔ وَهُوَ عِنْدَهُمْ عَطْفٌ عَلَى ذَفِيفٍ، وَهُوَ یہ کیا ہے آگا جان؟ ہوا یہ قدیر، عندہم عند البغدادیین، اور یہ قدیر بغدادیوں کی نظر میں عطف علی ذفیف، یہ ذفیف پر عطف ہے، قدیر عندہم بغدادیوں کی نظر میں عطف ہے ذفیف پر، ٹھیک ہے۔ وَخُرِّجَ عَلَىٰ أَنَّ الْأَصْلَ او طابخ قدیر، خرجہ حمل کیا گیا ہے، خرجہ حمل کیا گیا ہے کہ اصل یہ ہے، او طابخ قدیر مضاف پیچھے حذف ہے، طابخ قدیر ہے، ثم حذف المضاف پھر مضاف حذف ہوا ہے، مضاف کون سا؟ طابخ، وَأُبْقِيَ جر المضاف الیہ، اور مضاف الیہ کی جر کو باقی رکھا گیا ہے، مضاف الیہ یعنی قدیر کی جر کو باقی رکھا گیا ہے، کا قرات بعضہم جیسے بعض کی قرات ہے۔ واللہ یرید الآخرت، یہاں سوچنا آخرت کو جر یریدو تو نہیں دی نا، یریدو تو فعل ہے، یہ الآخرت جو ہے مضاف الیہ ہے، مضاف حذف ہے، وہ کیا ہے؟ یریدو بقا الآخرت، مضاف بقا حذف ہے، آخرت مضاف الیہ باقی ہے بالخفض، یہ او انہو عطف علی ذفیف، یا یہ قدیر عطف ہے ذفیف پر، قدیر عطف ہے ذفیف پر، ولیکن خفض علی الجوار، لیکن جر دی گئی ہے قدیر کو جوار پر، جوار یعنی ہمسائیگی جو شوائن ہے اس پر، او علی تواہم النظیف مجرور بالاضافہ، یا عطف علی تواہم ہے اگا، او انہو عطف علی ذفیف ولیکن خفض علی الجوار، او علی تواہم، یا قدیر کا عطف علی تواہم ہے، تواہم ہے یعنی فرض ہے، بر فرض ہے، عطف علی الفرض ہے، ان ذفیف مجرور بالاضافہ، وہ فرض کیا ہے کہ ذفیف مجرور ہے اضافت کے ذریعے، کون مضاف ہوا ہے؟ منزج، ذفیف کی طرف مضاف ہوا ہے، یہ فرض کریں، ٹھیک ہے نا، اور پھر قدیر کا اس پہ عطف کریں، کما قالا زہیر، جیسا کہ زہیر نے کہا ہے، بدعلی انی لست مدرکا ما مضا ولا سابقن شیئن اذا کان جائیا، یہاں بتا چکا ہوں کہ سابقن جو مجرور ہے اس کا عطف کیا ہے کس پر آگا جان؟ مدرکا پر، ٹھیک ہے نا، اور یہ عطف علی التواہم ہے، چونکہ فرض کیا ہے کہ مدرک مجرور ہے، پیچھے با حرف جر کے ذریعے سے یہ مجرور ہے، فرض یہ ہم نے کیا ہے، کیوں با کے ذریعے مجرور ہے، با زائدہ کے ذریعے؟ چونکہ لیسا کی خبر میں با آ سکتا ہے، یہ فرض کیا ہے ہم نے کہ مدرک مجرور ہے اور سابق کا اس پہ پھر عطف کیا ہے،
बदली अन्नी लस्तु मुद्रका मा मदा वला साबिकिन शयअन इज़ा काना जाइया, बदली मेरे लिए रोशन हुआ है कि मैं जो है दर्क करने वाला नहीं हूँ, मा मदा जो गुजर गया मैं उसको दर्क करने वाला नहीं हूँ, बदली मेरे लिए वाज़े हुआ है, रोशन हुआ है कि मैं दर्क करने वाला नहीं हूँ जो गुजर गया, वला साबिकिन शयअन इज़ा काना जाइया, और मैं सबकत करने वाला भी नहीं हूं किसी चीज पर, इज़ा काना जाइया कि जब वो जाइयन आए, इज़ा काना जाइया जो आ रही है, वला साबिकिन शयअन और मैं किसी चीज पर सबकत करने वाला भी नहीं हूं, इज़ा काना जाइया हर वो चीज जो आए आ रही है मैं उस पर सबकत करने वाला भी नहीं हूं। ठीक हो गया अजीजों, ये 11 फर्क थे इसमें फ़ाइल और सिफत मुशब्बह के दरमियान जो अपने भाइयों की खिदमत में अर्ज हुए। इसके बाद जो हमारा मौजू शुरू हो रहा है वो ये है, मा इफ्तरक फीहे अल हालो व तमीज़ो व मा इज्तमा फीहे। क्या मतलब है? आगा नया मौजू, वो मवारिद जिनमें हाल और तमीज़ जुदा हो जाते हैं और वो जिनमें हाल और तमीज़ जमा होते हैं। यानी ये कहना चाहता हूं कि हाल और तमीज़ 5 चीज़ों में मुश्तरक हैं और 7 चीज़ों में एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। आज मैंने ये बताना है आपको कि हाल और तमीज़ 5 चीज़ों में मुश्तरक हैं, हाल और तमीज़ 5 चीज़ों में मुश्तरक हैं और 7 चीज़ों में हाल और तमीज़ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। यानी हाल और तमीज़ में जो है 5 चीज़ें मुश्तरक हैं और 7 चीज़ों में हाल और तमीज़ में फ़र्क है। अगर वो मौरद जिनमें इत्तिहाद है, हाल और तमीज़ में जो इत्तिहाद है, नंबर 1 हर 2 इसम हैं, हाल भी इसम तमीज़ भी इसम। नंबर 2 हर 2 नकराएं, यानी हाल भी नकरा, क्या कह रहा हूं, हाल भी नकरा तमीज़ भी नकरा, हर 2 नकराएं, हाल और तमीज़ दोनों नकरा होते हैं, मुश्तरक हो गए। नंबर 3 हर 2 गैर रोकन हैं, हर 2 गैर रोकन हैं, फजला हैं। नंबर 4 हर 2 मनसूब हैं, हाल भी मनसूब होता है तमीज़ भी मनसूब होती है। 4 हो गया आगे जान। महल इश्तिराक, मुश्तरक चीजें कितनी हो गई? 4। नंबर 5 हर 2 रफ़ इबहाम करते हैं, हाल भी और तमीज़ भी दोनों रफ़ इबहाम के लिए आते हैं। दोबारा अर्ज कर दूं, क्या पढ़ रहे हैं? अभी क्या शुरू किया है? ये शुरू किया है कि हाल और तमीज़ 5 चीज़ों में मुश्तरक हैं और 7 चीज़ों में हाल और तमीज़ के दरमियान फ़र्क है। 7 चीज़ों में, ठीक है ना, 7 अमूर में हाल और तमीज़ में जो है जुदाई है और 5 चीज़ों में इश्तिराक है। 5 चीज़ों में जो इश्तिराक है वो पहले अभी तो मैंने आपको बताया। 5 चीज़ों में जो इश्तिराक है वो ये है, दोनों इसम हैं, हाल और तमीज़, बार बार ना कहूँ, हाल और तमीज़ दोनों इसम हैं, दोनों नकरा हैं, दोनों गैर रोकन हैं, दोनों मंसूब हैं, दोनों रफ़े इबहाम करते हैं। ये तो हो गया जनाब इश्तिराक, हाल और तमीज़ के दरमियान जो इश्तिराक है वो ये था। अब मैं बताने लगा हूँ हाल और तमीज़ के दरमियान 7 अमूर में फ़र्क है, 7 लिहाज से फ़र्क है। पहला फ़र्क किस किस में? हाल और तमीज़ के दरमियान पहला फ़र्क ये है, तवज्जो फरमाइए, कि जो हाल है वो मुफरद भी होता है, जुमला भी होता है, ज़र्फ़ भी होता है, जार मजरूर भी होता है, जबकि तमीज़ हमेशा बेसूरत इस्म होती है, तमीज़ जुमला या शिबह जुमला नहीं होती है। पहला फ़र्क हाल और तमीज़ के दरमियान अर्ज कर दिया है। दोबारा सुन लें, फ़र्क बता रहा हूँ। हाल और तमीज़ में हाल मुफरद भी होता है, जुमला भी होता है, ज़र्फ़ भी होता है, हाल जार मजरूर भी होता है, लेकिन तमीज़ सिर्फ इस्म होती है, तमीज़ जुमला या शिबह जुमला नहीं
ہوتی ہے۔ یہ پہلا فرق ہوگا جان۔ دوسرا فرق میرے عزیزو یہ ہے حال اور تمیز کے درمیان، ٹھیک ہے یا نہیں، کہ کیا ہے، کبھی کبھی کلام جو ہے وہ حال پر موقوف ہوتی ہے۔ کلام کا معنی حال کے اوپر کبھی کبھی، میں کبھی کبھی کی بات کر رہا ہوں، ہمیشہ نہیں، قد یتوقف معنی الکلام علیہا، کبھی کبھی کلام کا معنی حال پر موقوف ہوتا ہے، بخلاف تمیز، جبکہ تمیز میں ایسا نہیں ہے کہ کلام کا معنی تمیز پر موقوف ہو۔ کیا کہا ہے؟ دوسرا فرق کیا ہے؟ کبھی کبھی کلام کا معنی حال پر موقوف ہوتا ہے، حال آئے گا تو کلام کا معنی مکمل ہوگا، جبکہ تمیز میں ایسا نہیں ہے۔ تمیز کے بغیر بھی کلام کا معنی مکمل ہو جاتا ہے، لیکن حال میں کبھی کبھی کلام کا معنی حال کے ہوگا تو پھر وہ کلام کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ کبھی کبھی کلام کا معنی حال کے اوپر منحصر ہوتا ہے، لیکن تمیز میں ایسا نہیں ہے۔ مثال دوں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، مرحا حال ہے کہ نہ چلو زمین میں، در حالانکہ اکڑ کر، ٹھیک ہے۔ مرہن جو ہے یہ کلام کے معنی کو ٹھیک کر رہا ہے، کیونکہ دیکھو مرہن اگر نہیں ہے تو یہ تو بات ٹھیک نہیں نا کہ اللہ کہے لا تمشی فی الارض، زمین میں نہ چلو۔ اللہ یہ تو نہیں کہنا چاہتا نا کہ زمین میں نہ چلو، یہ تو اللہ نہیں منع کرتا اپنی زمین میں چلنے سے، کیسے بندہ زمین پہ نہ چلے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے زمین میں چلو لیکن اکڑ کر نہ چلو، تو یہ کلام کا معنی موقوف ہے مرہن پہ۔ مرہن آئے گا تو معنی ٹھیک ہوگا، ورنہ لا تمشی فی الارض اللہ زمین میں کہے کہ نہ چلو، یہ تو ٹھیک نہیں نا بات۔ اللہ زمین سے چلنے سے روک رہا ہے، مگر نہیں، روکتا ہے کس حال میں؟ مرہن، تکبر والی حالت میں روکتا ہے۔ تو کلام کا معنی موقوف ہے اس حال پر، لیکن تمیز میں ایسا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ تمیز میں ایسا نہیں ہے کہ کلام کا معنی تمیز کے اوپر جو ہے وہ موقوف ہو۔ کلیئر ہو گئی بات آگے جان؟ تیسرا فرق بھی میرے خیال میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تیسرا فرق کیا ہے؟ کس میں بھلا؟ حال اور تمیز کے درمیان تیسرا فرق یہ ہے کہ حال حیات کو بیان کرتا ہے، جبکہ تمیز ذوات کو بیان کرتی ہے۔ حیات حالات، حالت، حال مبین حیات ہے، حیات حالات حالت کو بیان کرتا ہے، جبکہ تمیز ذات کو بیان کرتی ہے۔ حال حالت کو بیان کرتا ہے، جیسے جاء زیدن ضاحکن، زید آیا کس حال میں؟ ضاحکن، یہ جو ہے حیت بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حال حیت کو بیان کر رہا ہے، جبکہ تمیز ذات کو بیان کرتی ہے۔ اندی مسکال ذہبن، ذات مسکال میں ابہام ہے، ذات مسکال میں ابہام تھا، تمیز نے دور کی، اندی مسکالن ذہبن۔ یہاں ممکن ہے سوال پیدا ہو کہ تمیز جب جملے میں جو نسبت ہوتی ہے اس سے ابہام کو دور کرتی ہے تو اس وقت پھر کیا کہیں؟ کیا ذات سے، آپ نے تو کہا نا تمیز ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے، ٹھیک؟ جیسے یہاں مثال دی اندی مسکال ذہبن، مسکال جو ذات ہے اس میں ابہام تھا، ذہبن نے دور کر دیا۔ لیکن جب تمیز نسبت سے ابہام کو دور کر رہی ہوتی ہے تو وہاں کیا کہیں گے؟ جواب عرض خدمت ہے کہ جب تمیز نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے وہاں بھی ذات سے ابہام کو دور کر رہی ہوتی ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، تمیز جب نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے تو وہاں بھی ذات سے ابہام کو دور کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی جب کہتے ہیں تاب زیدن، ٹھیک ہے نا، نفسن، ٹھیک ہے، تو وہاں بھی ذات میں ابہام ہے کہ زید کی کون سی چیز پاک ہے، زید کی بدن کی اجزاء ہے نا، کون سی چیز، کس لحاظ سے، کس جز سے، کس حوالے سے زید جو ہے وہ پاک ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ یہ جناب علی
مطلب ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. 3 فرق بتائیں اور چوتھا فرق بھی سن لیں. چوتھا فرق کیا ہے؟ حال اور تمیز کے درمیان چوتھا فرق یہ ہے کہ حال متعدد ہو سکتے ہیں بخلاف تمیز. تمیز متعدد نہیں ہو سکتی. حال متعدد ہو سکتے ہیں، تمیز نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہوتی تمیز متعدد؟ استعمال نہیں ہوئی. مختصر جواب یہ ہے ہم تابع استعمال ہیں، عربوں نے استعمال نہیں کی. حال متعدد ہوتا ہے بخلاف تمیز. تمیز متعدد نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ چونکہ استعمال نہ شدہ. استعمال نہیں ہوئی، ہم کیا کریں؟ حال متعدد ہوتا ہے جیسے دیکھو وَأَسْتَهْدِي ہے قریباً ہادیاً. قریباً ایک حال، ہادیاً دوسرا ہے. استہدی کی ہو سے، استہدی کی جو ہو ضمیر ہے نا اس سے قریباً ایک ہے، ہادیاً دوسرا حال ہے. وَاسْتَعِينُوا قَاهِرًا قادراً، قاہراً ایک حال، قادراً دوسرا. استعینوا کی ہو سے. اتوکل علیہ کافیاً ناصراً، علیہ کی یہ سے کافیاً ناصراً. یہ حال ہیں، توجہ فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما افترق فیہ الحال والتمیز وما اجتمع فیہ. وما وہ موارد جس میں حال اور تمیز فرق کرتے ہیں، وہ موارد جن میں حال اور تمیز جدا ہو جاتے ہیں. وما اجتمع فیہ اور وہ موارد جن میں حال اور تمیز کیا ہوتے ہیں، جن موارد میں جمع ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات ہے. ما افترق فیہ الحال والتمیز وما اجتمع فیہ. وہ موارد جس میں حال اور تمیز جو ہے نا جدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وما اجتمع فیہ اور وہ موارد جن میں حال اور تمیز جمع ہوتے ہیں. یہ ہے موضوع. اعلم انہما اجتمع فی 5 امور و افترق فی 7. آپ جان لے انہما حال و تمیز 5 امور میں جمع ہوتے ہیں اور 7 امور میں فرق کرتے ہیں ایک دوسرے سے. 7 امور میں کیا وجان افترقا ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. فالاوجہ الاتفاق وجوہ اتفاق یہ ہیں انہما اسمان نکرتان فضلتان منصوبتان رافعتان للابہام. انہما یہ حال اور تمیز اسمان دونوں اسم ہوتے ہیں، نکرتان دونوں نکرائیں، فضلتان دونوں فضلائیں، رکن کلام نہیں ہے، منصوبتان دونوں منصوب ہوتے ہیں، رافعتان للابہام یہ 5واں کے دونوں ابہام کو دور کرتے ہیں. دونوں یعنی حال اور تمیز. واما اوجہ الافتراق اما وجوہ افتراق، ٹھیک ہے. وہ وجوہ وہ چیزیں جن میں حال اور تمیز میں فرق ہے، جدا ہوتے ہیں. اوجہ افتراق کتنی تھی؟ 7. وہ پڑھنی ہے. احدھا ان میں سے ایک وجہ، احدھا ان اوجہ افتراق میں سے ایک کیا ہے؟ ان الحال تکون جملتاً کا قول امیر المؤمنین علیہ السلام وبعثہ والناس ظلال فی حیرۃ. حال جو ہے جملہ ہوتا ہے، حال جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے جیسے امیر المؤمنین کا قول ہے بعثہ والناس ظلال فی حیرۃ. پیغمبر کو اس وقت بھیجا کہ جب لوگ حیرت و پریشانی کے عالم میں گم کر دے رہا تھے. وظرفاً اور حال ظرف بھی ہوتا ہے، حال ظرف بھی ہوتا ہے. نہ رأیت الحلال بین الصحاب میں نے حلال کو دیکھا بادلوں کے درمیان. بین الصحاب یہ ظرف ہے اور حال ہے. میں نے حلال کو دیکھا در حالانکہ بادلوں کے درمیان تھا. وجارن و مجرورا اور جار اور مجرور جو ہیں وہ کیا ہے جان حال واقع ہوتا ہے. نہ وہ فخرج علی قوم فی زینتہ، فی زینتہ یہ حال ہے خرجہ کی ضمیر سے. پھر ایک دن نکلا وہ اپنی قوم کے سامنے فی زینتہ زینت کی حالت میں یعنی بڑے ٹھاٹ سے. قرون کی بات ہے ذہران کہ وہ ایک دن اپنی قوم کے سامنے بڑے ٹھاٹ سے نکلا. والتمیز لا یکون الا اسمان اور تمیز نہیں ہوتی الا اسمان سوائے اسم کے. تمیز صرف اسم ہوتی ہے. خالی عبارت پڑھتا ہوں. پہلا فرق کیا ہے؟ ان الحال تکون جملتاً و ظرفاً و جاراً و مجروراً والتمیز لا یکون الا اسمان. یہاں کے
सेटिंग करनी है। वसानी अन अलहाल कद यतवक्कफु मानल कलाम अलैहा का कौलिही। दूसरा फर्क किसमें, हाल और तमीज। हाल और तमीज की बात चलेगी, मैं कहूँ या ना कहूँ। हाल जो है कद यतवक्कफु मानल कलाम अलैहा, हाल जो है कभी कभी कलाम का माना हाल के ऊपर मौकूफ होता है। अन्नल हाला हाल कद यतवक्कफु मानल कलाम अलैहा, कभी कभी कलाम का माना हाल पर मौकूफ होता है। का कौलिही, जैसे अल्लाह ताला का कौल है वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और ना चलो जमीन में अकड़ अकड़ कर। ठीक है, बेखिलाफ तमीद, तमीद के खिलाफ के कलाम का माना तमीद पर मौकूफ नहीं होता है। ये मरहन जो है ये हाल है किसका वजन, तमशे जो है उसके अंदर अंता की ज़मीर है, उसके लिए ये हाल बन रहा है। तमशे में जो अंता की ज़मीर मुस्ततर है ना उसका। वस्सालिसो अन्नल हाल मुबय्यनतुन लिल हयात व तमीज़ मुबय्यनुन लिज़्ज़वात। तीसरा फर्क हाल और तमीज़ के दरमियान ये है कि हाल मुबय्यन हयात है, हयात हालत को बयान करता है, जैसा कि जा ज़ैदुन ज़ाहिकन। ठीक है, यहाँ ज़ाहिकन जा ज़ैदुन की क्या है वजन, ज़ैद की हालत को बता रहा है कि ज़ैद आया किस हालत में, ज़ाहिकन जो है तबस्सुम की हालत में आया, हंसते हुए। व तमीज़ मुबय्यनुन लिज़्ज़वात, और तमीज़ मुबय्यन ज़वात है, ज़वात को बयान करती है। जैसे इंदी मिस्कालुन ज़हबन, मिसाल है मिस्काल ज़ात है। ठीक है ना, ज़ात मिस्काल से ज़हबन जो है इसको दूर कर रहा है, मिस्काल की ज़ात में जो इबाम है ज़हब इसको दूर कर रहा है। तवज्जो फरमाना। वर्राबिओ आगा, वर्राबिओ चौथा फर्क हाल और तमीज़ में, अन्नल हाल ततअद्दद का कौल अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। ठीक है, बेखिलाफ तमीज़ हाल मुतअद्दिद होते हैं, जैसे अमीर अल मोमिनीन का कौल है वअस्तहदी करीबन हादिया वस्तईनुहु काहिरन कादिरा व तवक्कलु अलैहि काफियन नासिरा। बेखिलाफ तमीज़ हाल मुतअद्दिद होते हैं, जैसे अमीर अल मोमिनीन का कौल है वअस्तहदी है और उससे हिदायत चाहता हूँ, वअस्तहदी है और उससे हिदायत चाहता हूँ, दर हालांकि वो करीब है और हादी है। वस्तईनु काहिरन कादिरा, और उससे मदद चाहता हूँ चूंकि वो कादिर है, वो तवाना है। काहिरन कादिरा वस्तईनु, और उससे मदद चाहता हूँ, ठीक है ना, चूंकि वो काहिरो कादिर है, कादिर तवाना है। ठीक जी आजान। व तवक्कलु अलैहि काफियन नासिरा, और उस पर भरोसा करता हूँ चूंकि वो हर तरह की किफायत और इयानत करने वाला है। बेखिलाफ तमीज़, तमीज़ के खिलाफ कि तमीज़ मुतअद्दिद नहीं होती है। आप कहें जी कोई मसला नहीं है, एक दो तीन इकट्ठी तमीज़ें हम लगा देते हैं। ठीक है, मसलन मिसाल के तौर पे जनाब अली फ़र्ज में कर रहा हूँ, है गलत, फ़र्ज कर रहा हूँ ताबा ज़ैदुन नफ्सन, ठीक है, व अबन व खुल्कन व मालन, ये सारी चीज़ें लगा दूँ तो कोई हर्ज है नहीं, लगाने में बात नहीं है। बात ये इस्तेमाल नहीं हुई। बेखिलाफ तमीज़, तमीज़ के खिलाफ कि तमीज़ मुतअद्दिद इस्तेमाल नहीं हुई, मसला ये है। इसके बाद पांचवा और छठा फ़र्क, सातवां हाल और तमीज़ के दरमियान अगले दर्स में अर्ज़ करूँगा। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो अज़ीज़ो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।